پاکستانیوں کے حقوق کی خاطر 10 ماہ تک جیل کاٹ کر آنے والی طیبہ راجہ کا خط کا عنوان ہے ریاست ہوگی ماں کے جیسی۔ کہتی ہیں گزشتہ 20 سالوں میں قانون کی بالادستی، مساوی حقوق اور بروقت انصاف کی فراہمی کی جدوجہد کے سلسلے میں منفرد انقلابی تحریکوں نے پاکستان میں جنم لیا۔ جلسوں اور ریلیوں میں لہو گرمانے والا یہ قطعہ سننے کو ملتا تھا، ریاست ہوگی ماں کے جیسی، ہر شہری سے پیار کرے گی۔ اس قطعے کو دہراتے ذہن میں یہ تصور بیٹھ گیا کہ ریاست ایک ایسی شفیق اور محبت کرنے والی ماں کا نام ہے جو اپنے بچوں کو نہ صرف بنیادی حقوق، سہولیات اور یکساں انصاف مہیا کرے گی بلکہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لے گی۔ میرا تعلق اس طبقے سے ہے جو دنیا کے کسی بھی ترقی یافتہ ملک میں بہترین طرز زندگی گزارنے کے لیے سکونت اختیار کر سکتا ہے، لیکن مجھے اپنے سرزمین مملکت خدا دادے پاکستان سے اتنا عشق ہے کہ میں نے ہمیشہ اس ملک میں رہنے کو ترجیح دی۔ ترقی پذیر ممالک کے شہریوں کا خواب ہوتا ہے کہ وہ اپنے ملک کو ترقی یافتہ ممالک کی صفوں میں شامل ہوتا دیکھیں، اور میں ایسے خواب آنکھوں میں سجائے عملی طور پر اسی جدوجہد کا حصہ بنے اور ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ پاکستان کا آئین اور قانون مجھے یہ حق دیتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے کسی بھی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کروں، اپنی ذاتی پسند سے اپنا لیڈر منتخب کروں اور پرامن تحریکوں کا حصہ بنوں۔ میری ریاست کے شفیق اور محبت کرنے والی ماں کے تصور کو اس وقت شدید ٹھیس پہنچی جب 25 مئی 2022 کو پاکستانی عوام اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی کے خلاف پرامن احتجاج کے لیے گھروں سے نکلے اور انتظامیہ کے غیظ و غضب اور قہر کا شکار ہوئے۔ یہ قہر اتنا شدید تھا کہ عورتوں اور بچوں کی بھی تمیز روا نہ رکھی گئی، لیکن اس کے باوجود ہم کسی قانون شکنی کے مرتکب نہ ہوئے۔ کوئی گملہ، کوئی پتا تک نہ توڑا گیا۔ ہمارے لیڈر پر قاتلانہ حملہ ہوا، لیکن کسی نے بھی قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیا، ہمیشہ پرامن احتجاج درج کروایا۔ اسی کھینچا تانی میں وہ دن بھی آ گیا جسے سانحہ 9 مئی کہا جاتا ہے۔ میرے لیے 9 مئی واقعی ایک سانحہ ہے، کیونکہ میں نے 9 مئی کو کسی ریاستی ادارے کی کوئی دہلیز پار نہیں کی، کسی شرپسندی جلاؤ گھیراؤ کا حصہ نہیں بنی، لیکن 9 مئی کی رات کو ہی میرے گھر کی دہلیز پار کی گئی، چادر اور چار دیواری کے تقدس کی دھجیاں اڑا دی گئیں، گن پوائنٹ پر میرا موبائل فون اور لیپ ٹاپ چھینا گیا، میرے خاندان کے افراد کے سامنے میری بے عزتی کی گئی، میرے خاندان کے افراد کو ہراساں کیا گیا، گھریلو ملازمین کو مارا پیٹا گیا اور بنا کسی وارنٹ یا ثبوت مجھے جانوروں کی طرح ہانکتے ہوئے یرغمال بنا کر ایک بدنام زمانہ عقوبت خانے میں محبوس کر دیا گیا۔ میں 3 دن اس عقوبت خانے میں بھوکی پیاسی رہی اور وہاں موجود افراد سے صرف یہ پوچھتی رہی کہ میرا قصور کیا ہے۔ میں کسی توڑ پھوڑ جلاؤ گھراؤ کا حصہ نہیں رہی تو مجھے یہ اذیت کیوں دی جا رہی ہے؟ 3 دن سر توڑ کوشش کے باوجود میرے خاندان کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ مجھے کہاں قید کیا گیا ہے، میں زندہ بھی ہوں کہ نہیں، میری عزت بھی محفوظ ہے کہ نہیں، مجھ پر کوئی تشدد تو نہیں کیا جا رہا۔ میرے گھر سوگ کا عالم تھا۔ خاندان کے افراد خوف کی کیفیت میں مبتلا تھے کہ کیسے ایک آزاد ملک میں خاندان کے مردوں کے سامنے ان کی بہن بیٹی کو 40 افراد پر مشتمل جتھا اغوا کر کے لے گیا۔ 9 مئی سے فقط چند ماہ قبل میری والدہ کی اچانک وفات سے میرا خاندان پہلے ہی شدید صدمے سے دوچار تھا، اور 9 مئی کا دن میری ذات اور میرے خاندان پر بجلی بن کر گرا۔ دکھ، بے یقینی اور سکتے کا عالم تھا۔ 3 دن عقوبت خانے میں محبوس رکھنے کے بعد مجھے گھر بھیجنے کا جھوٹ بول کر انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پہنچایا گیا، لیکن کسی جج کے سامنے پیش کرنے کے بجائے
6 घंटे एक कमरे में बिठा कर एक झूठी FIR बनाई गई, जिसमें ना सिर्फ मुझे नामजद किया गया बल्कि ये झूठी कहानी भी घड़ी गई कि मुझे 9 मई की शाम 7 बजे कैंट के इलाके में एहतजाजी मुजाहरे के मकाम से मौके पर गिरफ्तार किया गया है। ये जाली मुकदमा दर्ज कराते हुए इंतजामिया की बदहवासी का ये आलम था कि मुझे 13 मई को 3 MPO के तहत कोट लखपत जेल में नजरबंद कर दिया गया, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने मेरी नजरबंदी को गैर कानूनी और बदनीयती पर मुश्तमिल करार देते हुए मुझे रिहा कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट से रिहाई के बाद मैंने ट्रायल कोर्ट से अबूरी जमानत हासिल की और मुअज़्ज़िज़ अदालत के हुक्म पर हर किस्म की तफ्तीश के लिए खुद को पेश किया। हर पेशी पे अदालत हाजिर होती रही, इंतजामिया और इदारों से हर मुमकिन ताउन किया। मैं पहली खातून थी जिसे 9 मई की रात ही घर से गिरफ्तार किया गया था, इसलिए बौखलाहट और बदहवासी में मुझे मरकजी मुकदमा 96/23 में नामजद कर दिया गया। मैं वाहिद खातून हूँ जिसे इस मुकदमे में नामजद किया गया। मेरा रियासत से सवाल है कि मैं किसी मुजरिमाना सरगर्मी, तोड़ फोड़, जलाओ घराव का हिस्सा ही नहीं थी, तो मुझ पर यह जुल्म क्यों किया गया? मुझे झूठे जाली मुकदमे में नामजद क्यों किया गया? मैं अपने ही घर में गैर महफूज क्यों हो गई? दिन रात ये खौफ तारी रहा कि दोबारा कोई मेरी 4 दीवारी फलांग कर मुझे अगवा न कर ले, और 10 अगस्त को मेरा ये बदतरीन खदशा सच साबित हुआ। 8 अगस्त को अदालत से मेरी अबूरी जमानत में तौसी के बावजूद 10 अगस्त की रात पुलिस एहलकारों ने मेरे घर पर धावा बोला और मेरे वारंट दिखाने के इसरार पर मुझे धमकियां दी गईं कि अगर मैं शराफत से साथ नहीं गई तो मुझे घसीट कर ले जाया जाएगा। 2 दिन मुझे मुख्तलिफ थानों में जलील करने के बाद मुझे एक और जाली मुकदमे में जेल भेज दिया गया और 10 अगस्त से तजलील, ज़हनी और जिस्मानी अजियत, बेहुरमती और नाइंसाफी का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक जारी है। हमें भेड़ियों के आगे फेंक दिया गया, बेइज्जती और बेहुरमती हमारा मुकद्दर बना दी गई। हमें दहशतगर्द, शरपसंद, फसादी औरतों के नाम से पुकारा जाने लगा। ज़ुमानी फिक्रे, हकारत अमेज हंसी, धौंस, धमकी रूटीन बन गई। शनाख्त परेड के नाम पर बेइज्जती और नाइंसाफी का सामना किया। जिस्मानी रिमांड के नाम पर मुकदमे में 9 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया गया और कैदी वैन में भेड़ बकरियों की तरह ठूंस कर एक थाने से दूसरे थाने ले जाया गया। तफ्तीश की आड़ में हर मुमकिन हद तक जलील किया गया, लेकिन हमने सब्र से काम लिया। जिन खवातीन ने कभी कॉकरोच नहीं मारा उन पर कत्ल, जलाओ घिराओ, बगावत और रियासत के खिलाफ जंग छेड़ने के संगीन मुकदमात बना दिए गए हैं। 6.5 महीने हो गए हैं, लेकिन मुझे जमानत के बुनियादी हक से महरूम रखा जा रहा है। मेरा खानदान बिखर कर रह गया है। मैं अपनी वालदा की पहली बरसी पर पाबंदे सलासल थी। मैं अपने बीमार वालिद की अयादत से कासिर हूँ। अल्लाह ने मेरे भाई को 7 साल बाद औलाद की नेमत से नवाजा, लेकिन मैं अपने खानदान में बरसों बाद आने वाली इस खुशी को मनाने से महरूम जेल में कैद हूँ। जेल में एक दिन नमाज फजर के दौरान एक खातून को ज़ारो कतार रोते हुए ये दुआ करते सुना कि या अल्लाह, इस मुल्क के मुनसिफों और हुक्मरानों के दिलों में हम औरतों के लिए रहम डाल। और मैं ये सोचती रही कि ये कैसी रियासत है जहाँ बसने वाली खवातीन अपने ही हुक्मरानों के कहर से पनाह मांगती फिर रही हैं। वो खातून फरजाना सरवर खान थी जिनकी रिहाई उनके शौहर की वफात की वजह से मुमकिन हो सकी। पाकिस्तान की 76 साला तारीख गवाह है कि पाकिस्तानी सियासी जमातों और सियासी खानदानों से ताल्लुक़ रखने वाली किसी खवातीन पर वो जुल्म जबर नहीं हुआ जो जुल्म और जबर का शिकार तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन हुई। ऐसा सलूक तो दुश्मन मुल्क की खवातीन के साथ भी रवा नहीं रखा गया। हम तो आपकी अपनी बेटियां हैं, हमसे इतनी नफरत क्यों? हम पर इस मुल्क की ज़मीन तंग कर दी गई है। मुल्क की ज़हीनो फतीन, डॉक्टर, इंजीनियर, वकला, फैशन डिज़ाइनर को जेलों में कैद करके
दहशत गर्दों के तौर पर पेश किया जा रहा है। जिन खवातीन ने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, उन्हें आपने दहशत गर्दों के तौर पर पेश कर दिया। ये इस मुल्क की तौहीन है। किस कानून के तहत खवातीन को जमानत के हक से महरूम रखा जा रहा है? कौन सा आईन इजाजत देता है कि अदालत से रिहाई के बावजूद खवातीन को दोबारा जेल के दरवाजे से गिरफ्तार करके जाली मुकदमे दर्ज किए जाएं? खुदारा ऐसा मत करें। 8 फरवरी को अवाम ने अपने वोट की खामोश ताकत से इस जालिमाना निजाम को मुस्तरद कर दिया है। खवातीन की बड़ी तादाद का घरों से निकलकर वोट डालना इस बात की निशानदही करता है कि वो इस मुल्क की खवातीन पर होने वाले मजालिम पर हम और शिकवा कना है और आपसे उन तमाम जख्मों का मदावा चाहती हैं जो 9 मई के बाद हमारी रूहों पर लगाए गए। हम पर जबरदस्ती लगाया गया दहशतगर्दी का लेबल इस कौम ने उतार फेंका है। अपनी बेगुनाह माओं को जेल की सलाखों के पीछे कैद देखने वाले बच्चे रियासत से सवाल कर रहे हैं कि अपने हकूक के लिए आवाज उठाना जुर्म कब से बन गया। बहुत हो गया। अब इस जालिमाना फरसूदा निजाम को बदला जाए। इस मुल्क के लोगों से जीने का हक मत छीने। हमारे आने वाली नस्लों के जहनों में नफरत का बीज मत बोएं। इस मुल्क के काबिल शहरियों को हिजरत पर मजबूर मत करें। ये मुल्क हमारी शनाख्त है, हमें इस शनाख्त पर फख्र है और हमसे कोई इंसान ये शनाख्त नहीं छीन सकता। खवातीन को वो इज्जत और मकाम दिया जाए जिसका तयन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। खवातीन को जाली मुकदमात में मुलविस करके जग हसाई का सिलसिला बंद किया जाए। तरक्की पसंद औरतों की बेइज्जती और उन्हें अदालतों में घसीट कर ज़हनी अजियत देने की ये रविश तर्क की जाए। हमारा मुकाबला दूसरी तरक्की याफ्ता अक़वाम से है, अपनी रियासत से नहीं। अब वक्त आ गया है कि रियासत एक मोहब्बत करने वाली माँ का किरदार निभाए और अपने बच्चों के दुख दर्द का मदावा करे। नफरत का जवाब नफरत नहीं होता। नफरत को सिर्फ मोहब्बत से शिकस्त दी जा सकती है। नफरतों के शहर को अगर मोहब्बत से आबाद ना किया गया तो आने वाली नस्लें आपको कभी माफ नहीं करेंगी। हमें आज़ाद फ़ज़ा में सांस लेने का हक, जज़ा सज़ा सब यहीं पे होगी, यहीं अज़ाबो सवाब होगा, यहीं से उठेगा शोरे महशर, यहीं पे रोज़े हिसाब होगा।